अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करेंगे। हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन? बायरो ब्रदर। हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन? बायरो ब्रदर। हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन? बायरो ब्रदर। Blaise Pascal. Blaise Pascal is associated with calculating machine. Blaise Pascal is associated with calculating machine. The electron was first identified by J.J. Thomson. The electron was first identified by J.J. Thomson. Logarithm table were invented by John Napier. Logarithm table were invented by John Napier. Which of the following was discovered by Ronald Ross? Malaria parasite. Which of the following was discovered by Ronald Ross? Malaria parasite. Who discovered that plants have life? J.C. Bose. Who discovered that plants have life? J.C. Bose. Who among the following invented the smallpox vaccine? Edward Jenner. Who among the following invented the smallpox vaccine? Edward Jenner. Zero was invented by Al-Khwarizmi. Zero was invented by Al-Khwarizmi. Name the Muslim scientist who presented the law of reflection and refraction. Ibn al-Hasham. Name the Muslim scientist who presented the law of reflection and refraction. Ibn al-Hasham. Who discovered the solar system? Nicholas Copernicus. Who discovered the solar system? Nicholas Copernicus. Who discovered the four blood groups? Kurt Landsteiner. Who discovered the four blood groups? Kurt Landsteiner. Robert Koch worked on tuberculosis. Robert Koch worked on tuberculosis जिसको हम आम जुबान में TB भी कहते हैं. Who among the following evolved the concept of relationship between mass and energy? Einstein. Who among the following evolved the concept of relationship between mass and energy? Einstein. Who proposed the chemical evolution of life? Oparin. Who proposed the chemical evolution of life? Oparin. The velocity of light was first measured by Romer. The velocity of light was first measured by Romer. Who invented the doctor's thermometer? Fahrenheit. Who invented the doctor's thermometer? Fahrenheit invented the doctor's thermometer. Who conducted the first heart transplant in 1967? Dr. Christian Barnard. Who conducted the first heart transplant in 1967? Dr. Christian Barnard. Who was the first to propose the use of fingerprints for identification? Sir Francis Gallen. Who presented the first to propose the use of fingerprints for identification? Sir Francis Gallen. Who invented the digital computer? Howard Allen. Who invented the digital computer? Howard Allen. Who discovered oxygen gas? Priestley. Who discovered oxygen gas? Priestley. Cell for the first time discovered by which scientist? Robert Hooke. Cell for the first time was discovered by which scientist? Robert Hooke. Who discovered the blood groups of man? Carrie Landsteiner. Who discovered the blood group of man? Carrie Landsteiner. Who invented CD compact disc? James T. Russell. Who invented compact disc या जिसको हम CD भी कहते हैं? James T. Russell. Who invented safety pin in 1829? Walter Hunt. Who invented safety pin in 1829? Walter Hunt. Name the person who sailed around the world in 1590 and discovered passage to the Pacific from Atlantic. He also proved that the shape of Earth is round. उस शख्स का नाम था Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan was the person who sailed around the world in 1590 and discovered passage to the Pacific from Atlantic, and he also proved that the shape of the earth is round. Niagara Falls was discovered by Louis Hennepin. Niagara Falls was discovered by Louis Hennepin. Louis Hennepin discovered Niagara Falls. नेक्स्ट है कि फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान इनटू अ वेस्टर्न लैंग्वेज वाज मेड इनटू लैटिन.
It was done by Robert Rotvisis and Hermanus Dementi in 1143. First translation of Holy Quran into a Western language was made into Latin. It was done by Robert Rotvisis and Hermanus Dementi in 1143. Philology. Philology is the study of science of languages. Philology is science of languages. Meteorology is the study of weather. Meteorology is the study of weather. Meteorology is the study of weather. Oncology is the study of cancer. Oncology is the study of cancer. Study of life in outer space is known as exobiology. Study of life in outer space is known as exobiology. Eugenesis is the study of altering human being by changing their genetic components. Eugenesis is study of altering human beings by changing their genetic components. Entomology deals with insects. Entomology deals with insects. Epidemiology is the study of epidemic diseases. Epidemiology is the study of epidemic diseases. A branch of biology dealing with structure and function of cells is called cytology. A branch of biology dealing with structure and function of cells is called cytology. The study of geographical areas, plants, and animal distribution is called chronology. The study of geographical areas, plants, and animals distribution is called chorology. The physics of the vital process of living organism is called biophysics. The physics of vital processes of living organisms is called biophysics. The study of the origin and physical and cultural development of mankind is called anthropology. The study of the origin and physical and cultural development of mankind is called anthropology. The study of forces acting upon bodies in motion in the air is called aerodynamics. The study of forces acting upon bodies in motion in the air is called aerodynamics. The study of sound and sound waves is called acoustics. The study of sound and sound waves is called acoustics. The study of universe, its origin, nature, structure, and evolution is called cosmology. The study of universe, its origin, nature, structure, and evolution is called cosmology. What is the study of culture and primitive peoples called anthropology? What is the study of culture and primitive people called anthropology? The study of fruits and seeds is called carpology. The study of fruits and seeds is called carpology. The study of glands. The study of glands is called endocrinology. The study of glands is called endocrinology. A branch of medicine studying blood and its disorder is called hematology. A branch of medicine studying blood and its disorders is called hematology. The study of tissues is called histology. The study of tissues is called histology. A biological study of external form and structure of living organism and their parts is called morphology. A biological study of external form and structure of living organisms and their parts is called morphology. The microscope is used to study small and near objects. The microscope is used to study small and near. The energy of food is measured in calories. The energy of food is measured in calories. Name the instrument used to measure relative humidity. Hygrometer. Name the instrument used to measure relative humidity. Hygrometer. What is the SI unit of temperature? Kelvin. What is the SI unit of temperature? Kelvin. Decibel is a unit of sound. Decibel is a unit of sound. Fathometer is used to measure ocean depth. Fathometer is used to measure ocean depth. The instrument used to measure electric current is ammeter. The instrument used to measure electric current is ammeter. The apparatus used in submarines to give a clear view of the object on the surface of the ocean or ground is called periscope.
The apparatus used in submarine to give a clear view of the object on the surface of the ocean or ground is known as periscope. The study of religions is called theology. The study of religions is called theology. A branch of medicine dealing with diagnosis and treatment of diseases of the skeletal system is called orthopedics. The branch of medicine dealing with diagnosis and treatment of diseases of the skeletal system is called orthopedics. A study that deals with process of fermentation is called zymology. A study that deals with the process of fermentation is called zymology. On joining IMF, each member is assigned a quota in special drawing rights corresponding to its relative position in the world economy. On joining IMF, each member is assigned a quota in special drawing rights corresponding to its relative position in the world economy. जब भी कोई इंसान IMF को ज्वाइन करता है तो उसके हर एक मेंबर को बाकायदा तौर पर एक कोटा जो है वो दिया जाता है और वो कोटा जो होता है वो उसके स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं उनके मुताबिक या उसकी मतलब वर्ल्ड इकानमी के अंदर कौन सी पोजीशन है उसके मुताबिक जो है वो कोटा उसको दिया जाता है. Which country has the largest quota which was about special drawing rights $42 billion in 2011? USA. अमेरिका जो है उसका सबसे ज़्यादा कोटा बनता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर IMF में तकरीबन $42 बिलियन था 2011 के अंदर. ये किस मुल्क का है? अमेरिका का. What determines how large a vote a member will have in IMF deliberations or how much foreign exchange it may withdraw from the funds? तो इसका आंसर है amount of quota subscription. What determines how large a vote a member will have in IMF deliberation or how much foreign exchange it may withdraw from the funds? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर किसी यानी कि मुल्क का IMF की अंदर उसका कोटा बहुत ज़्यादा है तो उसकी यानी कि जो वोट होगा उसका वोट भी उतना ही बड़ा होगा और ये वोट डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ कोटा सब्सक्रिप्शन कि उसकी कितना यानी कि उसने इन्वेस्ट किया हुआ है IMF के अंदर. What is the maximum period of a member country which use the foreign exchange extended by IMF to extricate itself from its balance of payment problem? तो इसका सही आंसर है 5 साल. What is the maximum period of a member country which use the foreign exchange extended by IMF to extricate itself from its balance of payment problems? तो तकरीबन 5 साल का जो वक़्त है वो मैक्सिमम वक़्त दिया जाता है किसी भी मेंबर को ताकि वो अपना जो उसका पेमेंट का प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व कर सके. यानी कि IMF की तरफ से उसको 5 साल का वक़्त मैक्सिमम दिया जा सकता है. What qualifies a member to apply for the fund from IMF? What qualifies a member to apply for the fund from IMF? Temporary balance of payment problem. अगर किसी मुल्क को या किसी यानी कि IMF के मेंबर को टेम्परेरी बैलेंस के अंदर उसको पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है तो वो IMF के सामने फ़ंड की अपील जो है वो कर सकता है. Who is the current IMF मैनेजिंग डायरेक्टर? मौजूदा IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है? क्रिस्टाइन लेगार्ड. क्रिस्टाइन लेगार्ड जो है ये मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF के. द इकोनॉमिक्स ऑफ द डेवलपिंग नेशंस आर मॉनिटर्ड बाय IMF. IMF जो है वो तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं यानी कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी इकॉनमी को मॉनिटरिंग करता है. कौन सा इदारा? IMF. वर्ल्ड बैंक was established at the Bretton Woods Conference in 1944. वर्ल्ड बैंक जो है वो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बनाया गया था और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 के अंदर. व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट. वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट. फॉलोइंग इज़ द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक. ये जो मुदर्जा झैल हैं ये वर्ल्ड बैंक के मकासद हैं. नंबर 1 मकासद ये है टू असिस्ट इन रिकन्स्ट्रक्शन बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पस. नंबर 2 के ऊपर इसका मकसद है टू प्रमोट प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मीन्स ऑफ गारंटीज. नंबर 3 के ऊपर इसका ऑब्जेक्टिव है पार्टिसिपेशन इन लॉन्स टू सप्लीमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट.
तो ये सारे के सारे जो हैं वर्ल्ड बैंक के ये मकासद है। मतलब ये किसी भी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए भी आपकी हेल्प करता है, आपके कैपिटल की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए ये बाकायदा तौर पर गारंटी भी देता है दूसरे प्राइवेट इदारों को, और साथ ही साथ ये लॉन्ग टर्म के ऊपर कर्ज़े भी फराहम करता है किसी अपने मेंबर की इन्वेस्टमेंट के लिए। The bank provides loans only to members for the purpose of financing specific project. The bank provides loans only to the members. बैंक जो है यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है वो अपने मेंबर को सिर्फ उस टाइम ही कर्ज़ा देगा जब उसके पास फाइनेंसिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो है वो होगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक लाइक अदर कंपनीज इशू शेयर्स which the member countries must buy according to the relative strength of their economy। और who is the largest shareholder of World Bank? अमेरिका जो है वो वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर के अंदर मतलब वर्ल्ड बैंक के जो शेयर्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि उस हर एक बंदे यानी कि हर एक मेंबर के पास उतना ज़्यादा वोटिंग का हक होगा जितने ज़्यादा उसके शेयर होंगे, और यूएसए के शेयर वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा हैं। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक करंटली हैज़? करंटली तौर पर मौजूदा तौर पर वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर हैं वो 188 कंट्रीज़ जो हैं वो इसके मेंबर हैं। द वर्ल्ड बैंक is the part the World Bank is the part of World Bank Group, which include International Finance Corporation, International Development Association, the Multilateral Investment Guarantee Agency एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये सारे के सारे जो हैं वर्ल्ड बैंक के पार्ट्स हैं यानी कि वर्ल्ड बैंक के हिस्से हैं। द वर्ल्ड बैंक का पहले हिस्से का नाम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। दूसरे हिस्से का नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरे हिस्से का नाम है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और चौथे का नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट है कि हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो उनका नाम है जिम योंग किम। जिम योंग किम जो है वो मौजूदा प्रेसिडेंट है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेटेड एट द कॉन्फ्रेंस called by President of USA फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन मई 1943। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको आम अल्फाज में FAO भी कहा जाता है, ये बनाई गई थी एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, और ये कॉन्फ्रेंस किसके तहत हुई थी यानी कि कौन इसको हेड करने वाला थे? तो वो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और उन्होंने मई 1943 के अंदर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया। द फर्स्ट सेशन ऑफ FAO was held in Quebec City of Canada in October 1945। FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला बाकायदा सेशन था वो क्यूबिक का एक यानी कि कनाडा का एक शहर है क्यूबिक, वहाँ पर अक्टूबर 1945 में जो है वो पहला सेशन हुआ था। Other than European Union and Faroe Island, FAO is represented by how many countries? 191। FAO को तकरीबन 191 ममालिक जो हैं वो इसके मेंबर हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द हेड क्वार्टर ऑफ FAO आर एस्टेब्लिश्ड इन रोम। रोम जो है ये इटली का एक शहर है, और यहाँ पर जो है ये FAO का हेड क्वार्टर पाया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ FAO लैटिन मोटो फेंट पेनस? तो इसका मतलब है लेट देयर बी ब्रेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ FAO लैटिन मोटो फिएट पेनस? फिएट पेनस जो है ये एक लैटिन मोटो है FAO का, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है उसका नाम है फिएट पेनस, जिसका ये मतलब है कि लेट देयर बी या ब्रेड, के मतलब रोटी खाने दो। नेक्स्ट आएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज ऑटोनमस पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन इन 1919। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाकायदा तौर पर एक ऑटोनमस पार्ट बन के आया था लीग ऑफ नेशन का 1919 के अंदर। 1919 के अंदर जो है वो ILO एस्टेब्लिश हुआ लीग ऑफ नेशन के तहत। The ILO was brought into formal relationship with the United Nations in 1946। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बाकायदा तौर पर फॉर्मल जो रिलेशनशिप बना था यूनाइटेड नेशन के साथ वो 1946 में बना था। ILO इज़ कम्पोज्ड ऑफ हाउ मैनी मेंबर नेशन? ILO के पास तकरीबन 185 कंट्रीज़ जो हैं वो इसके मेंबर हैं। ILO सेट स्टैंडर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग?
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं? इसका पहला है डिसेबल्ड वर्कर्स के लिए काम करना, फिर ह्यूमन राइट्स के लिए, और फिर एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। ये तीनों के तीनों जो मकासद हैं ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल हैं। द ILO गवर्निंग बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसके गवर्निंग बॉडी के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 56। ILO गवर्निंग बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स? 56। वाई ILO इज़ डिफरेंट फ्राम अदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? ILO दूसरी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट किस तरह है? तो इसका डिफरेंस है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल टेक पार्ट इन वर्क। ILO जो है वो दूसरी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशनों से इस हवाले से मुख्तलिफ है क्योंकि इसके जो एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं, यानी कि जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपने अपने इसके कामों के अंदर वो हिस्सा लेते हैं। ILO हेडक्वार्टर आर एस्टेब्लिश्ड इन जनेवा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा के अंदर है। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। यूनेस्को जो है उसका क़याम 1945 में अमल में आया। यूनेस्को के मेंबर्स कितने हैं? 195। यूनेस्को के 195 मेंबर्स हैं। यूनेस्को का जो हेड ऑफिस है वो पेरिस के अंदर है। यूनेस्को का हेड ऑफिस जो है वो पेरिस के अंदर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1948 के अंदर इस्टेब्लिश हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1948 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। When the idea for a global health agency was proposed at the United Nations Conference on International Organization held in California, तो ये 1945 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का ख्याल आया था और इसको डिस्कस किया गया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हुई थी इनकी कॉन्फ्रेंस जो कि कैलिफोर्निया के अंदर, उसके अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का डिस्कस किया गया था। WHO's global campaign to eliminate smallpox began in 1967। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूरे ग्लोबल के ऊपर जो है वो एक कंपेन उन्होंने चलाई थी ताकि स्मॉल पॉक्स को ख़त्म किया जा सके, तो उन्होंने ये कंपेन शुरू की थी 1967 के अंदर। अच्छा, When did WHO reported that smallpox had been eradicated worldwide? WHO ने ये कब रिपोर्ट किया था कि स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है? तो उन्होंने 1979 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दिया था कि स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है। In 1980s, WHO launched programs to eradicate polio and leprosy। 1980 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया था ताकि पोलियो को पूरी दुनिया से और साथ ही लिप्रोसी को ख़त्म किया जा सके, इरेडिकेट किया जा सके। WHO हैज़ हाउ मैनी मेंबर नेशन? WHO के कितने यानी कि कंट्रीज़ मेंबर हैं? तो 194 ममालिक जो हैं वो इसके मेंबर हैं। WHO के 194 ममालिक जो हैं वो मेंबर हैं। अच्छा, नेक्स्ट आएगा कि द WHO हैज़ 194 मेंबर स्टेट इंक्लूडिंग ऑल यूनाइटेड नेशन स्टेट्स एक्सेप्ट लिंचटन एंड 2 नॉन यूनाइटेड नेशन मेंबर्स नियो एंड कुक आइलैंड। यानी कि ये 2 यानी ऐसे ममालिक हैं जिसके अंदर पहला है लिंचटन, फिर है नियो और फिर है कुक आइलैंड। ये जो हैं ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं हैं। बाकी जितने भी WHO के मेंबर हैं वो सारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं। अच्छा, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉमनवेल्थ को। एट प्रेजेंट हाउ मैनी सॉवरन स्टेट्स फॉर्म कॉमनवेल्थ? अब मौजूदा दौर के अंदर, मौजूदा वक्त में कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और सॉवरन कंट्रीज़ हैं जो कि कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं? तो उनकी तादाद है 54। मौजूदा वक्त में जो सॉवरन स्टेट्स उनकी तादाद 54 है जो कि कॉमनवेल्थ को होल्ड किए हुए हैं। हु इज़ द सिंबॉलिक हेड ऑफ कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ का सिंबॉलिक हेड कौन है? तो उनका नाम है क्वीन एलिज़ाबेथ II। क्वीन एलिज़ाबेथ
टू जो हैं वो सिंबॉलिक हेड हैं कॉमनवेल्थ नेशंस की। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ लेफ्ट द कॉमनवेल्थ ऑन बिकमिंग रिपब्लिक इन 1948, तो वो है म्यांमार। वो कौन सा मुल्क है जिसने कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया था जब वो रिपब्लिक बना था 1948 के अंदर, तो उस कंट्री का नाम है म्यांमार। Pakistan left Commonwealth in 1972 when Bangladesh was recognized by Commonwealth. When did Pakistan rejoin Commonwealth as 49th member? 1991 के अंदर। पाकिस्तान ने 1972 में कॉमनवेल्थ को इस वजह से छोड़ दिया था क्योंकि कॉमनवेल्थ ने बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज़ कर लिया था। फिर बाद में 1991 के अंदर पाकिस्तान ने दोबारा रीजॉइन किया एज अ 49th मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट है कि साउथ अफ्रीका लेफ्ट कॉमनवेल्थ इन 1961, इट रीजॉइंड इन मई 1994 रेजिंग द नंबर ऑफ कॉमनवेल्थ टू 51। साउथ अफ्रीका ने पहले 1961 के अंदर कॉमनवेल्थ को लीव कर दिया था, फिर मई 1994 के अंदर इसने दोबारा ज्वाइन किया कॉमनवेल्थ को और 1994 में कॉमनवेल्थ की तादाद हो गई थी 54। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ कॉमनवेल्थ इज़ नाउ 54 मेंबर्स, विच कंट्री जॉइंड एज 54th मेंबर। वो कौन सा मुल्क है जिसने 54वें नंबर पर कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया, तो उसका नाम है रवांडा। रवांडा जो है ये अफ्रीका का मुल्क है और इसने एज अ 54th मेंबर जो है वो ज्वाइन किया है कॉमनवेल्थ को। विच ऑफ दीज कंट्रीज़ इज़ अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, इनमें से कौन सा मुल्क जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर है, तो उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जो है ये कॉमनवेल्थ का मेंबर है। नेक्स्ट है व्हेन ब्रिटिश डोमिनियन बिकेम डिफाइंड एज फ्री एंड इक्वल कंट्रीज विद इन ब्रिटिश एम्पायर 1926। व्हेन ब्रिटिश डोमिनियंस, कब ब्रिटिश के जो डोमिनियन है यानी कि ब्रिटिश की सरकार को चलाने वालों ने कब ये चीज़ का फ़ैसला किया था कि अब फ्री और इक्वल कंट्रीज़ होंगे बरतानिया की एम्पायर में, तो उन्होंने 1926 में इस बात का ऐलान किया था। Which Asian city will host the Commonwealth Game between 3 अक्टूबर and 14 अक्टूबर 2010, तो वो शहर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो यानी कि ये ऐसा एशियन सिटी है जिसने कॉमनवेल्थ की गेम्स को होस्ट किया था 2010 के अंदर 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के दरमियान। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी पीपल लिव इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, तकरीबन कितने लोग जो हैं वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में रहते हैं, 2.1 बिलियन। यानी कि टोटल लोग अगर पूरी दुनिया में 8 बिलियन है तो उसमें से 2.1 बिलियन जो लोग हैं वो कॉमनवेल्थ के अंदर रहते हैं। Since 1977, which day and month has been celebrated as Commonwealth Day? 1977 से लेकर आज तक वो कौन सा दिन और वो कौन सा महीना है जब कॉमनवेल्थ का डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है 2nd मंडे इन मार्च। कि जब भी मार्च का महीना आता है और उसका दूसरा सोमवार आता है, यानी कि हर मार्च के दूसरे सोमवार को कॉमनवेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट आएगा इन 1949 अंडर विच डिक्लेरेशन मेंबरशिप प्रीवियसली बेस्ड ऑन कॉमन अलायंस टू द ब्रिटिश क्राउन चेंज टू वन इन विच मेंबर एग्री टू रिकॉग्नाइज द ब्रिटिश मोनार्क एज अ सिंबल हेड ऑफ कॉमनवेल्थ, तो ये हुई थी लंदन डिक्लेरेशन। लंदन डिक्लेरेशन जो है ये 1949 के अंदर हुई थी और इसके अंदर बाकायदा तौर पर ये बात कही गई थी कि अब जो ब्रिटिश मोनार्क है यानी कि जो क्वीन है, जो क्वीन एलिज़ाबेथ II जो है वो अब सिंबॉलिक हेड होगी कॉमनवेल्थ की, तो उसका नाम था लंदन डिक्लेरेशन। नेक्स्ट आएगा इन हाउ मैनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ ब्रिटिश मोनार्क इज़ कंसिडर्ड द हेड ऑफ स्टेट। वो कितने ज़्यादा कॉमनवेल्थ के कंट्रीज़ हैं, यानी कि टोटल तो 54 हैं कॉमनवेल्थ के अंदर, इन 54 में से कितने ऐसे ममालिक हैं जो ब्रिटिश क्वीन को अपना हेड समझते हैं, तो उन ममालिक की तादाद है 16 ममालिक ऐसे हैं जो क्वीन एलिज़ाबेथ II को अपना हेड समझते हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड लेफ्ट कॉमनवेल्थ इन 1949। आयरलैंड ने कॉमनवेल्थ को कब छोड़ा? 1949 के अंदर आयरलैंड ने कॉमनवेल्थ को छोड़ा था। फिजी लॉस्ट कॉमनवेल्थ मेंबरशिप ड्यू टू मिलिट्री कॉप इन 1987 व्हेन फिजी वाज रीइंस्टेटेड 1997। फिजी जो है उसको कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप से निकाल दिया गया था 1987 के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री ने जो है वो
टेक ओवर कर लिया था। फिर फिजी को दोबारा कब शामिल किया गया था कॉमनवेल्थ में? 1997 के अंदर। द कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट वाज एस्टैब्लिश्ड इन लंदन टू सर्व एज क्लियरिंग हाउस फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन in 1965. Commonwealth Secretariat was established in London to serve as clearinghouse for the exchange of information in 1965. When the Office of Dominions was abolished and the Secretary of Commonwealth assumed charge in 1947. ये कब की बात है कि जब ब्रिटिश की यानी कि कॉमनवेल्थ को डोमिनेट करने वालों का जो ऑफिस है उसको ख़त्म कर दिया गया, यानी कि अब कॉमनवेल्थ को डोमिनेट करने वाले नहीं रहेंगे बल्कि जो सेक्रेटरी होगा उसे ही कॉमनवेल्थ का चार्ज दिया जाएगा। तो ये बात 1947 के अंदर जो है ये इसके ऊपर अमल किया गया था। व्हेन कॉमनवेल्थ वाज एस्टैब्लिश, कॉमनवेल्थ एस्टैब्लिश कब हुई? 1931 के अंदर। व्हेन कॉमनवेल्थ वाज एस्टैब्लिश्ड, 1931 के अंदर कॉमनवेल्थ जो है वो एस्टैब्लिश हुई। व्हेन द आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कंप्राइजिंग ग्रेट ब्रिटेन, द डोमिनियंस एंड अदर ट्रीटीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड एट द इंपीरियल कॉन्फ्रेंस इन 1926। व्हेन द आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कब कॉमनवेल्थ के नेशन को यानी कि कॉमनवेल्थ के आइडिया को ग्रेट ब्रिटेन ने यानी कि लोगों के सामने पेश किया और बाकी फिर यानी कि दूसरे ममालिक के सामने इन्होंने कब इस चीज़ को पेश किया था? 1926 के अंदर पेश किया और 1931 में जो है कॉमनवेल्थ एस्टैब्लिश हो गई थी। हाउ मच ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट कॉमनवेल्थ, तकरीबन पूरी दुनिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2.1 बिलियन जो है वो तादाद के अंदर बनती है और परसेंटेज के अंदर 30% जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की वो कॉमनवेल्थ की मेंबर है। नेक्स्ट आएगा कि विच ब्रिटिश पॉलिटिशियन कॉइंड द टर्म कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इन 1884, तो उसका नाम है लॉर्ड रेजनबर्ग। विच ब्रिटिश पॉलिटिशियन कॉइंड द टर्म कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इन 1884, वो कौन से ब्रिटिश पॉलिटिशियन है जिन्होंने इस टर्म को ईजाद किया था, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के नाम को उन्होंने ईजाद किया था 1884 में, तो उनका नाम था लॉर्ड रेजनबर्ग। नेक्स्ट है कि विच इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड इन 1949, लंदन डिक्लेरेशन। विच इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड इन 1949, 1949 के अंदर एक बड़ी अहम जो है एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई, उसका नाम था लंदन डिक्लेरेशन। विच वाज द ब्रिटिश लार्जेस्ट कॉलोनी दैट जॉइंट कॉमनवेल्थ, तो यह है इंडिया। इंडिया जो है वो बरतानिया की सबसे बड़ी कॉलोनी थी जिसने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया। कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जो होती हैं वो हर 4 साल के बाद जो है वो कॉमनवेल्थ की गेम्स होती हैं। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल, जो कॉमनवेल्थ का सेक्रेटरी जनरल होता है उसकी यानी कि ऑफिस होल्ड करने की मुद्दत कितनी होती है? 4 साल। मतलब जो सेक्रेटरी होता है कॉमनवेल्थ का वो 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड स्पेशल मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, तो उस मुल्क का नाम है ट्यूवैल्यू, TUVALU। विच कंट्री इज़ कॉल्ड स्पेशल मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, तो स्पेशल मेंबर जो है कॉमनवेल्थ का उसका नाम है ट्यूवैल्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आल्सो कॉल्ड द कॉमन मार्केट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ट्रीटी ऑफ रोम ऑन 25 मार्च 1957। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है ये एक कॉमन मार्केट को इस्टेब्लिश करने के लिए बनाई गई थी ये वाली कम्युनिटी, जिसका एब्रीवेशन है EEC। EEC जो है ये ट्रीटी ऑफ रोम के तहत जो है 23 मार्च तो 25 मार्च 1957 को ये ट्रीटी जो है ये साइन की गई थी और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की एस्टेब्लिशमेंट हुई। द यूरोपियन यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट ऑन 1 नवंबर 1993। यूरोपियन यूनियन जो है वो एक ट्रीटी साइन की गई थी 1 नवंबर 1993 को और वो जो ट्रीटी हुई थी वो मैस्ट्रिक्ट MASSTRICHT मैस्ट्रिक्ट जो ट्रीटी है उसके तहत 1993 में इसका क़याम अमल में आया। When the European Union was created in 1993, the EEC was transformed into the European Community, one of the European Union's 3 pillars.
व्हेन द यूरोपियन यूनियन, जब यूरोपियन यूनियन को 1993 के अंदर बनाया गया था, तो जो EEC है, EEC मतलब इकोनॉमिक, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है, इसको ट्रांसफॉर्म किया गया था और ये एक पिलर था, यानी कि EEC जो है ये सिर्फ एक पिलर था यूरोपियन कम्युनिटी का। अच्छा, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के कितने ममालिक मेंबर हैं? 28 ममालिक। यूरोपियन यूनियन के 28 ममालिक जो हैं वो मेंबर हैं। अंडर विच ट्रीटी यूरोपियन सिटीजन्स वाज ग्रांटेड टू सिटीजन, यूरोपियन सिटीजनशिप वाज ग्रांटेड टू सिटीजन ऑफ ईच मेंबर स्टेट। द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत जो है यूरोपियन सिटीजनशिप जो है वो यूरोप के सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है, यानी कि उनको ग्रांटेड की जाती है। आउट ऑफ टोटल 28 मेंबर्स, हाउ मैनी मेंबर स्टेट्स हैव रिप्लेस्ड द नेशनल करेंसीज विद यूरो। तकरीबन 18 ममालिक जो हैं यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने अपनी करेंसी को यूरो करेंसी के साथ जो है वो रिप्लेस कर लिया है। Which of the following members of European Union has not changed their national currency with euro? इसमें के यूके भी है, स्वीडन है और डेनमार्क, ये तीनों ममालिक जो हैं इन्होंने अपनी करेंसी को यूरो की करेंसी के साथ अभी तक यानी कि रिप्लेस उन्होंने नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद आएगा वेयर यूरोपियन यूनियन हेड क्वार्टर आर लोकेटेड। यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स के अंदर। यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स के अंदर है। विच एग्रीमेंट टुक प्लेस बाय यूरोपियन यूनियन इन जनवरी 1993। 1993 जनवरी 1993 के अंदर यूरोपियन यूनियन के अंदर कौन सा एग्रीमेंट हुआ था? वो हुआ था सिंगल मार्केट विद फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। 1993 के अंदर जनवरी में जो है यूरोपियन यूनियन का एक और एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था सिंगल मार्केट, यानी कि एक ही मार्केट होगी पूरे यूरोप की जिसके अंदर गुड्स और कैपिटल की मुकम्मल तौर पर मूवमेंट फ्री होगी। The 785 members of European parliaments are directly elected by European Union citizens every 5 years। तकरीबन 785 मेंबर जो हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर से वो डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन के जो सिटीजन्स हैं वो इलेक्ट करते हैं। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। The first president of 27 nation European Union, Herman Van Rompuy, elected in November 2009, belong to which country? तो उसका ताल्लुक था बेल्जियम से। नेक्स्ट है यूरोपल, EUROPOL, यूरोपोल यानी यूरोपियन पुलिस, जिसका एब्रीविएशन बनती है यूरोपियन यूनियंस क्रिमिनल इंटेलिजेंस एजेंसी। इट बिकम फुली ऑपरेशनल ऑन 1 जुलाई 1999। यूरोपोल यानी EUROPOL जो कि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं उनके लिए एक क्रिमिनल इंटेलिजेंस एजेंसी ये बनाई गई है और इसको मुकम्मल तौर पर जो ऑपरेशनल किया गया था 1 जुलाई 1999 को इसको ऑपरेशनल कर दिया गया था। Which country became the 28th member of European Union on 1 जुलाई 2013? तो वो है क्रोशिया। क्रोशिया जो है वो 28वां मेंबर बना था यूरोपियन यूनियन का 1 जुलाई 2013 को। Which country opted to exit the European Union on 24 जून 2006 after the referendum was held? 24 जून और 2016 को जो है यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के लिए इंग्लैंड ने जो है वो बाकायदा तौर पर एक रेफरेंडम पास करवाया था अपने मुल्क के अंदर कि उसके बाद यूरोपियन यूनियन को जो है उन्होंने अलविदा कह देना है। नेक्स्ट आएगा कि फर्स्ट नेम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन बेलग्रेड यूगोस्लाविया इन सितंबर 1961। नैम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बेलग्राडा के अंदर हुई थी यूगोस्लाविया में सितंबर 1961 के अंदर। द नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि नैम केम इनटू एग्जिस्टेंस मेनली थ्रू द इनिशिएटिव ऑफ, जो नॉन अलाइन मूवमेंट है वो किस की मेहनत से जो है बनाई गई थी? तो वो यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जिनका नाम था जोसेफ टीटू, दूसरे नंबर पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू और तीसरे नंबर पर इजिप्टियन प्राइम मिनिस्टर जमाल अब्दुल नासर। इन तीनों लोगों की मदद से जो है नैम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट को बनाया गया था। इन 1992 द मेंबरशिप ऑफ विच नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्री वाज सस्पेंडेड। 1992 के अंदर वो कौन सा मुल्क है जिसकी नैम की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया था? तो वो है फ़लस्तीन की मेंबरशिप को 1992 के अंदर जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नैम?
पहला सेक्रेटरी जनरल नैम का कौन सा था, तो वो थे जोसेफ ब्रॉस टीटू। जोसेफ ब्रॉस टीटू जो हैं वो पहले सेक्रेटरी जनरल बनाए गए थे नॉन अलाइन मूवमेंट के। द नैम समिट वाज हेल्ड इन अगस्त 2004 इन साउथ अफ्रीका। नैम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट की जो समिट हुई थी 2004 के अंदर, अगस्त 2004 के अंदर, तो वो साउथ अफ्रीका के अंदर हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट नैम। नैम के बारे में क्या बात दुरुस्त है, तो इसके बारे में पहली बात ये दुरुस्त है कि नैम डज़ नॉट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। नैम के पास किसी किस्म का कोई आइन नहीं है। नंबर 2 के ऊपर है नैम के पास कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। तीसरे नंबर पर है नैम्स कोऑर्डिनेशन ब्यूरो इज़ बेस्ड एट द यूनाइटेड नेशन, कि नैम का जो कोऑर्डिनेशन ब्यूरो है वो बिल्कुल यूनाइटेड नेशन के ऊपर बेस करता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो नैम के बारे में दुरुस्त हैं। द 16th नैम समिट ऑफ 2012 वाज कन्वीन्ड इन ईरान। जो 2012 के अंदर 16वीं समिट हुई थी नैम की, वो कहाँ पर हुई थी, ईरान के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है करंटली नैम हैज़ 120 मेंबर्स एंड 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज़। मौजूदा वक्त में तकरीबन 120 ममालिक जो हैं वो नैम के मेंबर हैं और 117 ममालिक जो हैं वो इसके ऑब्जर्वर स्टेटस के अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट है द 17th नैम समिट वाज हेल्ड ऑन सितंबर 2016 इन वेनेजुएला। जो 17वें नंबर पर नैम की समिट हुई थी 2016 में, वो हुई थी वेनेजुएला के अंदर। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हु आर अदर मेंबर कंट्रीज़ ऑफ सार्क। सार्क की जो एब्रीविएशन बनती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। वह यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के और कितने ममालिक जो हैं वो सार्क के मेंबर हैं। तो उनमें मज़ीद जो आते हैं वो नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, ये भी ममालिक जो हैं वो सार्क का हिस्सा हैं। सार्क वाज फॉर्म्ड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को सार्क को जो है ढाका के अंदर जो है बनाया गया था। सार्क को ढाका में 8 दिसंबर 1985 को बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन पर्पज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सार्क। सार्क को बनाने के पीछे सबसे अहम मकसद क्या नहीं था। पहला मकसद इसका ये था कि टेररिज्म को कम्बैट किया जाएगा। दूसरा मकसद ये था कि जो साउथ एशिया के मेंबर हैं उनकी, यानी कि जो साउथ एशिया के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा। और तीसरा ये था कि जो इसके मेंबर हैं उनकी इकॉनमिक और कल्चरल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो प्रमोट की जाएगी। लेकिन इसका ये वाला मकसद बिल्कुल नहीं था कि टू फॉर्म म्यूचुअल डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन, कि मतलब अगर बाहर से कोई और ऑर्गेनाइजेशन इन ममालिक के ऊपर हमला करेगी तो ये मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, ये इसके ऑब्जेक्टिव में शामिल नहीं था। विच सार्क समिट वाज हेल्ड इन इस्लामाबाद इन 2004। वो कौन सी सार्क समिट थी जो इस्लामाबाद में 2004 में हुई, तो वो 12th सार्क समिट थी। 12वें नंबर की जो सार्क समिट थी वो इस्लामाबाद में 2004 में हुई थी। फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड इन 1985 इन ढाका। पहली जो सार्क समिट हुई थी वो बांग्लादेश के अंदर 1985 में जो है वो हुई थी ढाका के अंदर। सार्क का जो हेड क्वार्टर है वो खटमांडू नेपाल के अंदर है। खटमांडू शहर है नेपाल का, वहाँ पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गॉट ऑब्जर्वर स्टेटस इन सार्क। वो कौन कौन से ममालिक हैं जी जो सार्क के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस इंजॉय कर रहे हैं, तो वो है जापान और चाइना। जापान और चाइना जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस के ऊपर है। द एक्रोनीम सार्क स्टैंड फॉर, यानी कि सार्क के अंदर SAARC, सार्क के अंदर जो सी है उसका क्या मतलब है, तो मैंने पहले बताया था कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो सी का मतलब बना कोऑपरेशन। अच्छा, उसके बाद आएगा कि सेप्टा, SAPTA, सेप्टा इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय सार्क नेशंस। जो ममालिक सार्क के मेंबर हैं, जो सार्क की नेशंस हैं, उनके यानी कि दरमियान जो है ये ट्रेड एग्रीमेंट है सेप्टा का। नेम द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। सार्क के पहले सेक्रेटरी जनरल का नाम था अबू अल एहसान। अबू अल एहसान जो है ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे सार्क के। प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव ममनून अब्दुल गयूम हैज़ अटेंडेड 14 सार्क समिट्स बिसाइड हिम हु वाज अटेंडेड मैक्सिमम नंबर ऑफ सार्क समिट। तो वो हैं, यानी कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे ममनून अब्दुल गयूम के अलावा
उन्होंने तकरीबन 14 जो है वो सार्क की समिट अटेंड की थी। इसके अलावा और कौन से मेंबर हैं जिन्होंने यानी कि अटेंड की थी, तो वो हैं किंग जामी सिंह फ्राम वेंगचुक के जो किंग हैं उन्होंने भी अटेंड की थी। अच्छा, नेक्स्ट है कि 2010 से 2020 तक सार्क का जो डेकेड है इसका क्या नाम था, यानी कि साल 2010 से 2020 तक ये जो दरमियान वाले 10 साल हैं, 10 साल को हम A1 डेकेड कहते हैं। तो इस यानी कि ये जो पूरा एक डेकेड था ये किस मकसद के लिए था? इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी यानी कि तमाम जो मेंबर हैं वो आपस में कनेक्टिविटी को फ़रोग दें। इन विच ईयर सार्क लॉ कमीशन वाज फार्मूलेटेड? सार्क लॉ कमीशन कब बनाया गया? 1991 के अंदर। सार्क लॉ कमीशन जो है वो 1991 के अंदर फार्मूलेट किया गया। सार्क लॉ वाज अकॉर्डेड रिकॉग्निशन इन विच ईयर? 1994 के अंदर। सार्क लॉ का जो अकॉर्ड है यानी कि ये जो हुआ था इनका मुआहिदा, इसको रिकॉग्निशन किस साल में मिली? यानी कि ये बन तो 1991 में गया था, फार्मूलेट 1991 में हुआ, लेकिन इसको जो रिकॉग्निशन है वो मिली 1994 के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट आएगा कि विच कंट्री वाज द मेजर डोनर इन फाइनेंसिंग द सार्क को फाइनेंस करने में सबसे ज़्यादा या बड़ा डोनर कौन सा मुल्क है? तो वो है श्रीलंका। सार्क के अंदर सबसे बड़ा डोनर जो है वो श्रीलंका का मुल्क है। अच्छा जी, नेक्स्ट आती है आसियान। आसियान की एब्रीवेशन क्या बनती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967 विद इट्स हेडक्वार्टर इन जकार्ता। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि आसियान जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी 8 अगस्त 1967 को और उसका हेडक्वार्टर है जकार्ता के अंदर। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फाउंडेशन ऑफ आसियान को बनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद क्या था? तो वो था टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन साउथ ईस्ट एशिया, कि साउथ ईस्ट एशिया के जो मेंबर ममालिक जो आसियान के मेंबर हैं उनके दरमियान इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इम्प्रूव किया जाए। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर द करंट मेंबर्स ऑफ आसियान? आसियान के मौजूदा वक़्त के अंदर 10 ममालिक जो हैं वो मेंबर हैं। मौजूदा वक़्त में 10 ममालिक जो हैं वो आसियान के मेंबर हैं। एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द वियतनाम वार, आसियान वाज ओरिजिनली इंटेंडेड एज। वियतनाम वार के दौरान जो है आसियान को इस्टेब्लिश किया गया था। और आसियान का मौक़िफ़ क्या है, आसियान के मक़ासद क्या हैं? तो सबसे पहला मक़ासद ये है कि जो कम्युनिज़म सेपरेट हो रहा है उसके अगेंस्ट एक ब्लॉक बना दिया जाए। पहला मकसद ये था, यानी कि चाइना और रशिया के अंदर जो कम्युनिज़म है वो जो बढ़ रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा ब्लॉक बना दिया जाए। जो दूसरे नंबर पर सार्क को बनाने का आसियान को बनाने का मकसद था तो वो ये था कि टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रमोट रीजनल पीस इन द रीजन, कि पूरे रीजन के अंदर यानी कि साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव किया जाए और वहाँ पर अमन जो है वो लेकर आया जाए। और आखिरी जो इसका था टू मेडिटेट इन केस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर कंट्रीज़, कि अगर जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान किसी किस्म की कोई झड़पें होती हैं या कोई नाराज़गी होती है तो उसको भी कम किया जाएगा। ये तीनों के तीनों जो हैं वो इसके ऑब्जेक्टिव थे। अच्छा, नेक्स्ट है कि इन जनवरी 1992 आसियान मेंबर्स एग्री टू एस्टैब्लिश फ्री ट्रेड एरिया एंड टू कट टैरिफ्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर गुड ओवर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। जनवरी 1992 के अंदर आसियान जो है वो इस बात के ऊपर एग्री हो गया था कि जो जो हमारे मेंबर हैं उनको फ्री ट्रेड एरिया जो है वो दिया जाए, यानी कि आपस में जो है वो फ्री ट्रेड एरिया किया जाए और नॉन एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं उनके ऊपर जो टैरिफ है उसको रिमूव कर दिया जाए। तो ये 15 सालों के लिए जो है ये एग्रीमेंट हुआ था 1992 के अंदर। आसियान का ममालिक आपस में 15 सालों के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि द 31st आसियान समिट 31वीं जो आसियान की समिट हुई है नवंबर 2017 में, ये हुई है फ़िलीपीन के अंदर। ये हुई है फ़िलीपीन के अंदर जो है वो 31वीं समिट हुई है। अच्छा, आगे बात करते हैं ECO की, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम क्या था? वो था RCD। RCD का मतलब बनता है रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट का नाम तब्दील करके इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रखा गया था। पाकिस्तान, ईरान एंड तुर्की एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग टेक्निकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स इन 1985। 1985 के अंदर
पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने आपस में मिलकर ECO को जो है वो बनाने का मंसूबा बनाया ताकि मेंबर्स के दरमियान टेक्निकल, कल्चरल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए। 1985 में व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECO के सबसे बड़े बड़े मकासद कौन से हैं? तो पहला मकसद इसका ये था कि जो इसके मेंबर कंट्री हैं उनके दरमियान इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सस्टेन किया जाए। दूसरा इसका मेंबर था कि जितने भी जो ट्रेड बैरियर्स हैं यानी कि एक दूसरे के यानी कि कैपिटल गुड्स या मतलब दूसरी जो खाने पीने की चीज़ें वगैरह होती हैं उनको लाने और ले जाने के लिए जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिमूव किया जाए। और तीसरा था कि जो ECO पूरा रीजन है इसके दरमियान स्टेबिलिटी जो है उसको प्रमोट किया जाए। तो ये तीनों जो हैं वो इसके थे मतलब ऑब्जेक्टिव। सेक्रेटरी जनरल ऑफ ECO इज़ इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसको 3 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। ECO का हेडक्वार्टर है तेहरान, ईरान के अंदर। ECO का हेडक्वार्टर है तेहरान में जो कि ईरान में है। अच्छा, नेक्स्ट है कि हेडक्वार्टर ऑफ ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक, जो यानी कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है ECO की, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इस्तांबुल, तुर्की के अंदर। इस्तांबुल, तुर्की के अंदर जो ECO की एक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, मज़ीद आगे उसका एक जो सब ग्रुप है ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर है इस्तांबुल, तुर्की के अंदर। अच्छा, आगे बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, SCO की। चाइना फाउंडेड इंटरनेशनल अलायंस शंघाई 5 ऑन अप्रैल 1996। चाइना ने शंघाई 5 के नाम से एक अलायंस बनाया था इंटरनेशनल कंट्रीज़ का आपस में, अप्रैल 1996 के अंदर ये बनाया गया था। अच्छा, इस शंघाई 5 के कौन कौन से मुल्क पहले नंबर पर मेंबर बने थे? तो वो पहले नंबर पर रशिया, फिर चाइना, फिर कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और 5वां है ताजिकिस्तान। ये 5 ममालिक जो हैं वो इसलिए बनाए गए थे कि ताकि आपस में अगर कोई बॉर्डर इशू है ममालिक का तो उसको सॉल्व किया जाए। शंघाई 5 स्पेशली फोकस्ड ऑन बैटलिंग टेररिस्ट थ्रेट फ्राम अफ़गानिस्तान। शंघाई का यानी कि 5 का स्पेशली तौर पर फोकस किस बात पे था? उनका ये फोकस था कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर बढ़ती हुई टेररिस्ट है उसको काउंटर किया जाएगा इन सारे ममालिक आपस में मिलकर। इन जून 2001 which Central Asian state was invited to join Shanghai 5 and the group was finally named SCO, तो वो है उज़्बेकिस्तान। जून 2011 के अंदर उज़्बेकिस्तान को इनवाइट किया गया कि वो शंघाई 5 का मेंबर बने, और फिर वहाँ से जब उज़्बेकिस्तान मेंबर बना तो इस शंघाई 5 के नाम को बदल कर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रख दिया गया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? इसका मेन मकसद क्या था? तो इसका पहला मकसद था कि जो बॉर्डर प्रॉब्लम्स हैं मेंबर के दरमियान उसको रिमूव किया जाए। अगर कोई इकोनॉमिक टाइज़ बनते हैं यानी कि इकोनॉमिक टाइज़ जो हैं इकोनॉमिकली मुआशी तौर पर इन तमाम ममालिक को आपस में प्रमोट किया जाए। साथ ही साथ मल्टी पोलर जो है वर्ल्ड उसको भी प्रमोट किया जाए। ये सारे के सारे इसके मकसद थे। SCO का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? तो ये है बीजिंग, चाइना के अंदर। बीजिंग जो है ये चाइना का कैपिटल है और चाइना के अंदर ही जो है इसी SCO का सेक्रेटेरिएट है। अच्छा, आगे है ईरान, इंडिया और पाकिस्तान गेंड ऑब्जर्वर स्टेटस इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको इन्होंने यानी कि ऑब्जर्वर स्टेटस इनको दिया गया था जुलाई 2005 के अंदर। ईरान, इंडिया और पाकिस्तान को जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था जुलाई 2005 में। अच्छा, नेक्स्ट आएगा कि इन विच ईयर डिड पाकिस्तान बिकम अ फुल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एट इट्स 15th समिट हेल्ड इन UFA रशिया। तो वो हुआ था 2015 के अंदर। 2015 के अंदर जो है बाकायदा तौर पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो हैं रशिया के कहने के ऊपर, जो कि 15th समिट हुई थी रशिया के अंदर ही, ये 15वीं समिट हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों को जो है फुल मेंबरशिप हासिल हो गई थी इसकी SCO की। आगे बात करते हैं ओपिक की। अच्छा, ओपिक के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओपिक जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की। ये इस्टेब्लिश हुई थी 14 नवंबर 1960 को। ओपिक जो है ये डेवलप हुई थी 14 नवंबर 1960 को, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वायना के अंदर।
ओपिक जो है उसकी एब्रीवेशन बनती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये इस्टेब्लिश हुआ था 14 नवंबर 1960 को। इसका हेडक्वार्टर है वाइना के अंदर, और इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ऑयल है, क्रूड ऑयल जो है, उसकी प्रोडक्शन को और उसकी कीमतों को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि हेडक्वार्टर ऑफ ओपिक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्रीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपिक इज़ नॉट करेक्ट? ओपी के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है? तो वो है कि इट्स मेंबरशिप इज़ ओपन टू एवरी कंट्री, मतलब ओपी की मेंबरशिप तमाम ममालिक के लिए ओपन है। ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ उन ममालिक के लिए ओपन है जहाँ से क्रूड ऑयल जो है वो आता है, बरामद किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है कोलंबो प्लान, COLOMBO, कोलंबो प्लान। व्हेन वाज कोलंबो प्लान एस्टेब्लिश्ड विद इट्स हेडक्वार्टर इन कोलंबो? 1950 के अंदर। कोलंबो प्लान जो है उसका हेडक्वार्टर है कोलंबो के अंदर, और उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1950 के अंदर। कोलंबो प्लान जो है कोलंबो प्लान स्टार्टेड विद 7 कॉमनवेल्थ कंट्रीज। करंटली द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज हैज़ राइजन टू 25। कोलंबो प्लान जो है ये इसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 7 ममालिक से, और ये 7 ममालिक मेंबर थे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के। और इस वक्त मौजूदा वक्त के अंदर जो 25 ममालिक हैं वो इसके मेंबर बन चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बीइंग द एस्टेब्लिश्ड ऑफ कोलंबो प्लान? कोलंबो प्लान के बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा और इस वक्त मेजर मुहर्रिक है वो क्या है? टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन मेंबर कंट्रीज़। जो सबसे बड़ा मकसद है कोलंबो को बनाने के अंदर वो ये था, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन मेंबर कंट्रीज़ के जो नए ममालिक यानी कि जिनको आज़ादी हासिल हो रही है 1950 के बाद, उन तमाम ममालिक को आपस में जो है वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट और उनके दरमियान जो डेवलपमेंट है उसको भी प्रमोट किया जाए, इस मकसद के लिए इसको बनाया गया था। विच स्टेटमेंट अबाउट कोलंबो प्लान इज़ इनकरेक्ट? कोलंबो प्लान के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो वो ये कि हेडक्वार्टर ऑफ कोलंबो प्लान इज़ एट कोलंबो, कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलंबो के अंदर है। ये बात इस हवाले से बिल्कुल गलत है, लेकिन पीछे तो मतलब इन्होंने लिखा हुआ है कि इसका हेडक्वार्टर वहाँ पे है। अच्छा, नेक्स्ट आएगा कि OIC की एब्रीवेशन क्या बनती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अच्छा, पाकिस्तान के जो सिर्फ एक ही यानी कि अभी तक रहे हैं OIC के हेड, उनका नाम था सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। ये 1985 से 1988 तक जो है वो OIC के हेड जो है ये रहे थे, OIC के हेड। अच्छा, नेक्स्ट है कि व्हेन वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कब बनी? सितंबर 1969 के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है ये बनी थी सितंबर 1957 के अंदर। इस वक्त OIC के कितने मेंबर हैं? 57। हाउ मैनी मेंबर्स डज OIC हैव? OIC के पास इस वक्त 57 मेंबर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ OIC? OIC को बनाने के पीछे सबसे मेन मकसद क्या था? तो वो ये था, टू प्रमोट इस्लामिक सॉलिडारिटी, सेफ गार्ड होली प्लेसेस। वो ये मकसद था कि मतलब जो भी इस्लामी ममालिक हैं उनके दरमियान बाकायदा तौर पर एक यकजा यानी कि उनमें इत्तेहाद होना चाहिए, और साथ ही साथ जो मुसलमानों की मुक़द्दस जगहें हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। हेडक्वार्टर ऑफ OIC आर लोकेटेड इन जद्दा। जो हेडक्वार्टर है OIC का वो लोकेट करता है जद्दा के अंदर। OIC के यानी कि जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, द OIC जनरल सेक्रेटेरिएट इज़ हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। इनको 4 सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है। OIC के सेक्रेटरी जनरल को 4 सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।